فلم کا آغاز ایلین نامی شخص سے ہوتا ہے جو اپنی ملازمت کے لیے اپنے خاندان کو چھوڑ کر پہلی بار ایمسٹرڈیم آیا ہے۔ اپنے دفتر پہنچنے پر اسے اپنا کیبن دکھایا جاتا ہے جہاں وہ ٹھہرنے والا تھا۔ وہ کچھ دیر اپنی بیوی اور گھر والوں سے بات کرتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ وہ ٹرین میں اپنی ایئرمین کو بھول گیا ہے۔ وہ تھوڑی دیر میں بازار میں جڑی بوٹیاں خریدنے جائے گا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک عمارت میں جاتا ہے جہاں الیکٹرانک کی دکان تھی، یعنی وہ یہاں سے ثبوت حاصل کر سکتا تھا۔ یہاں کا ماحول بالکل نارمل تھا۔ اس نے ابھی ثبوت لینا شروع کیے تھے کہ اچانک ہم نے اس عمارت کے باہر ایک کار کو رکتے دیکھا۔ اندر سے ایک شخص بندوق لے کر نکلا اور اندر جا کر لگاتار فائرنگ کرنے لگا۔ یہ گولیاں انسانوں کو نہیں لگ رہی تھی، وہ ہوا میں گولیاں چلا رہا تھا۔ لیکن یہ سب کچھ بھگدڑ مچانے کے لیے کافی تھا۔ اس نے ابھی تک یہاں کسی کو نہیں روکا تھا۔ لوگ خوف کے مارے جلدی جلدی دکان سے نکلنے لگے۔ یہاں اجنبی بھی گولی سے خود کو بچانے کے لیے میز کے نیچے بیٹھ گیا، اور دوسری طرف یہاں کام کرنے والا ایک شخص بھی اپنی جان بچانے کے لیے کچھ لوگوں کے ساتھ یہاں کے سٹور روم میں چھپ جاتا ہے۔ کمرہ تقریباً خالی تھا۔ اس سے پہلے کہ اجنبی بھی یہاں سے بھاگتا، دہشت گردوں نے اجنبی پر جھپتا اور اسے یرغمال بنا لیا۔ اس سٹور کے باہر پہلے ہی 2 پولیس اہلکار موجود تھے جنہوں نے دہشت گرد کو روکنے کے لیے اس پر فائرنگ کی، تو اس دہشت گرد نے بھی فوراً ان پر فائرنگ شروع کر دی اور وہ دونوں روڈ بلاک کے پیچھے چھپ گئے۔ اب تک اس دہشت گرد کا خیال تھا کہ اس نے صرف ایک شخص کو پکڑا ہے جس کی مدد سے وہ جو چاہے لوٹ مار کر سکتا ہے یا اپنے مطالبات پورے کر سکتا ہے، لیکن حقیقت میں اس عمارت کے اوپر ایک اور دفتر تھا جہاں اب اس کی وجہ سے تقریباً 40 لوگ پھنس گئے تھے۔ اب وہ اپنے سامنے کھڑے پولیس اہلکاروں کو ایک سوئچ دکھاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ میں اپنے ساتھ ایک بم لایا ہوں، اور اگر اسی نے مجھے تھوڑا بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور مجھے لگا کہ کوئی مجھے دھوکہ دے رہا ہے تو میں اس سوئچ کو دبا کر پوری عمارت کو تباہ کر دوں گا۔ وہ صرف عمارت کی بات کر رہے تھے، لیکن حکومت کو 39 لوگوں کی جانوں کو خطرہ تھا جس کے بارے میں اس دہشت گرد کو بھی علم نہیں تھا۔ اگر اس دہشت گرد کو اس بات کا علم ہو جاتا تو وہ بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتا تھا اور ان تمام لوگوں کی جانوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ بہت سے پولیس والے اب اس عمارت کے محافظوں کے پاس آ چکے تھے۔ پولیس ہیڈ کوارٹر اب اس دہشت گرد سے رابطہ کرتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ دہشت گرد انہیں کہتا ہے کہ میں کسی ایسے شخص سے بات کرنا چاہتا ہوں جو مجھے حکومت سے جوڑ سکے۔ میرے کچھ مطالبات ہیں جو پورے نہ ہوئے تو میں ایک بٹن دبا کر اس پوری عمارت کو تباہ کر دوں گا، کیونکہ میرے پاس بہت بڑا بم ہے۔ سٹور روم میں چھپے 4 لوگ بھی دہشت گرد کی باتیں سن رہے تھے، لیکن دہشت گرد کو معلوم نہیں تھا کہ سٹور روم میں کچھ لوگ چھپے ہوئے ہیں۔ چنانچہ سٹور روم میں بیٹھا شخص جلدی سے پولیس کو کال کرتا ہے اور اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ اس کے ساتھ 3 اور لوگ بھی اسی عمارت کے سٹور روم میں چھپے ہوئے ہیں جہاں دہشت گرد ہے، اور وہ ابھی تک ہمارے بارے میں نہیں جانتا۔ وہ پولیس افسر کو اس دہشت گرد سے متعلق بہت سی باتیں بتاتا ہے جو ان کے لیے مفید ہو سکتی ہے، جیسے یہ دہشت گرد یہاں اکیلا آیا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ جب سے وہ آیا ہے اس نے یہاں کسی کو قتل نہیں کیا، لیکن اس نے صرف ہوا میں گولیاں چلائیں، اور اب وہ صرف ایک آدمی کو قید کر رہا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ معاملہ سنگین ہوتا جا رہا تھا۔ اوپر 40 لوگوں کی گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ ان کو نکالنا حکومت کا پہلا مشن تھا، اور وہ اس مشن کو دہشت گرد سے خفیہ رکھنا چاہتے تھے۔ اس لیے اسپیشل فورسز کی ٹیم بھی عمارت میں آ چکی تھی۔ جن 2 پولیس اہلکاروں نے دہشت گردوں پر فائرنگ کی تھی، دہشت گرد اب بھی ان پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ کسی بھی وقت ان پر گولی چلا سکتا تھا۔ وہ خود کو بچانے کے لیے پتھر کے پیچھے چھپ گئے تھے۔
चुनाचे पुलिस वहां एक कार लाती है और उसके पीछे छुपकर दोनों पुलिस एहलकार जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। इस वक्त अजनबी सबसे ज्यादा घबरा रहा था क्योंकि दहशतगर्द मुसलसल उसकी तरफ बंदूक उठा रहा था। कोई भी नाजुक लम्हा उसकी जान ले सकता है। अब पुलिस हेडक्वार्टर में एक हुकूमती बोलने वाला आ चुका था। ये वो अफसर था जो इस दहशतगर्द के मुतालबात सुनता था। उसे सारी सूरत हाल बताई जाती है कि दहशतगर्द दोपहर में गोलियां चलाते हुए इमारत में कैसे दाखिल हुआ था। उसने वहां के लोगों को गिरफ्तार नहीं किया बल्कि सिर्फ एक आदमी को कैदी बना लिया। उसके पास एक बम भी है जिससे वो खाली इमारत को उड़ाने की धमकी दे रहा है। से अभी तक मालूम नहीं है कि इमारत की दूसरी मंजिल पर 40 अफराद फंसे हुए हैं और इसी इमारत के स्टोर रूम में मजीद 4 अफराद फंसे हुए हैं। पुलिस हर तरह से कोशिश कर रही है कि किसी तरह उसे खामोश कराया जाए और लोगों को बालाई इमारत से बाहर निकाला जाए, लेकिन तब तक हमें आपकी जरूरत है। लिली नामी एक अफसर इससे पूछता है कि दहशतगर्द क्या चाहता है, तो वो बताता है कि इस दहशतगर्द के कुछ मुतालबात हैं जिन्हें वो हुकूमत से पूरा करना चाहता है। अब लिली बैठती है और पहली बार खुद दहशतगर्द से बात करती है और इससे उसका नाम पूछती है, तो दहशतगर्द कहता है कि अभी आप मुझे ए कह सकते हैं। इससे पहले कि लिली उससे मजीद कोई सवाल करती, दहशतगर्द कहता है, मैं आपसे बाद में इस शख्स के बारे में बात करूंगा जिसे मैंने यरगमाल बनाया है। वो कहना चाहता है, दरअसल अजनबी उसे बताना चाहता था कि मैं दिल का मरीज हूँ। मैं जो दवा लेता हूँ वो मेरी कमर में है, बराह करम मुझे दे दो वरना मेरी हालत खराब हो जाएगी। ये दहशतगर्द नहीं चाहता था कि यरगमाल गैर मुल्की अपनी मौत आप मर जाए और इस तरह हुकूमत उसकी बात ना सुने। ना चाहते हुए भी वो उसकी मदद के लिए उसे दवा देता है, लेकिन अब उनके पास पानी नहीं था। वो उसे रेड बुल से ये दवा लेने को कहता है, लेकिन रेड बुल वाले दिल के मरीज को दवा नहीं दी जा सकती थी। नहीं। वहीं हेडकोर्ट में भी लिली ने कॉल मुनक़ता होने से पहले मेडिसिन का नाम सुना था और तलाश करने पर उसे ये भी मालूम हुआ कि यरगमाली यानी एलियन दिल का मरीज है और उसके लिए इस हालत में रहना अच्छा नहीं है। ये दहशतगर्द दोबारा पुलिस को कॉल करता है और लिली से बात करते हुए कहता है कि मुझे अपने अकाउंट में 200 मिलियन बिटकॉइंस चाहिए। ये सुनकर लिली चौंक जाती है और कहती है कि ये बहुत बड़ी बात है, मुझे इसके लिए कुछ वक्त दरकार है, हम इस पर बात कर रहे हैं। तो वो आदमी कहता है कि अगर तुमने मेरा मुतालबा पूरा ना किया तो मैं एक बटन दबाकर इस सारी जगह को तबाह कर दूंगा। ये कहकर उसने कॉल काट दी। अजनबी उससे पूछता है कि तुम्हारा क्या ख्याल है, तुमने इतना बड़ा मुतालबा क्या है, क्या हुकूमत तुम्हारा मुतालबा मानेगी? तो वो आदमी कहता है कि अगर वो माने तो ठीक है, अगर वो ना माने तो समझ लो कि तुम मर जाओगे। 77 में इस पूरी इमारत को भी तबाह कर दूंगा, जिसमें मैं भी मरूंगा। मैं तो पहले ही जिंदगी से तंग आ चुका हूं, मर भी जाऊं तो पछतावा नहीं, और अगर मेरे मुतालबात पूरे हो जाएं तो कम से कम अपनी जिंदगी अच्छी तरह गुजार सकूंगा। तब मैं वो तमाम काम कर सकूंगा जो मैं करना चाहता हूं। मैं सिर्फ इस हुकूमत से अपने हकूक हासिल करना चाहता हूं। मैंने इस हुकूमत को बहुत टैक्स दिया, लेकिन इसके बदले में वो हमें वो खिदमात फराहम नहीं कर सकी जो हमारा हक है। मुझ जैसे हजारों लोगों ने मुझ पर हुकूमत की है और मैं उन सब का बदला लेना चाहता हूं। दरअसल एलियन इससे बात करके उसे समझाने की कोशिश कर रहा था और वहां से फरार होने का मौका हासिल करना चाहता था, लेकिन इस दहशतगर्द को शायद उसकी गेम समझ आ गई थी, इसलिए उसने गुस्से से एलियन को चुप रहने को कहा और उसके साथ सेल्फी लेकर एक मीडिया हाउस को भेज दी। एक गाहक स्टोर के मुलाजिम पर चीखना शुरू कर देता है, जिसने उन गाहकों को छुपा रखा था कि मैं तुम्हारी वजह से इस मुसीबत में हूं। अगर तुम मुझे इस वक्त ना रोकते और बैटरी ना दिखाते तो मैं 5 मिनट पहले यहां से चला जाता और फारिग हो जाता। इसकी बात सुनकर वहां मौजूद खातून कहती है, अगर ऐसा ना होता
तो तुम आज तक जिंदा ना होते। इसकी वजह से हम यहाँ छुप कर अपनी जान बचा सकते थे। बाद में वो इस कारकुन से माजरत भी कहता है जिसने मामला समझा। इस कारकुन ने भी कुछ बुरा नहीं किया क्योंकि वो जानता था कि खौफ की वजह से सबका बुरा हाल है। यहाँ पुलिस को वो तस्वीर भी मिलती है जो दहशतगर्द ने अजनबी के साथ इस मीडिया हाउस को भेजी थी। वो तस्वीर को गौर से देखते हैं और समझते हैं कि इसके पास जो बम है वो जाली बम है। इसलिए वो स्पेशल फोर्सेस को हुक्म देते हैं सबसे पहले ये मालूम किया जाए कि बम असली है या नहीं। अगर बम जाली है तो दहशतगर्द को पकड़ना बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ स्पेशल फोर्सेस का एक शख्स स्टोर रूम में मौजूद कारकुन से हाथ से बनी पूरी इमारत का नक्शा हासिल करता है और उसे अपने पास बुलाता है। वो चुपके से इमारत में दाखिल होते हैं और ऊपर मौजूद 40 अफराद को हटाना शुरू कर देते हैं। अब दहशतगर्द को इसका इल्म नहीं है क्योंकि एक पुलिस अफसर उससे मुसलसल बात कर रहा था उसकी तवज्जो हटाने के लिए। वो उसे बताते हैं कि आपके साथ वाला शख्स एक अजनबी है जो सख्त मरीज है। आप उसे दवाई लेने के लिए सुर्ख बेल देने वाले थे और ये उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। बात करते करते इधर उधर घूमने लगता है और गलती से बगैर मास्क के कैमरे की तरफ देखता है। पुलिस ने तलाशी ली तो पता चला कि ये अमर नामी शख्स है जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। उससे कबल वो एक ज़हनी अस्पताल में भी रह चुके हैं। अब ये अमार नामी दहशतगर्द इस स्टोर में घूमने लगता है और वो इस स्टोर रूम के करीब भी जाता है जिसमें वो 4 लोग मौजूद थे। लेकिन जब उसने उसे खोला तो अंदर से लॉक इन था। उसने सोचा कि शायद ये अमारत का ही कोई निज़ाम है। उसने उस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी। एक अच्छी बात यह हुई कि स्पेशल फोर्सेस के लोग टॉप 40 लोगों को बहिफाजत निकालने में कामयाब हो गए। इसी दौरान स्टोर रूम में मौजूद कारकुन ने दोबारा पुलिस से राब्ता किया और बताया कि स्टोर रूम में मौजूद खातून, मुझे लगता है कि उसे दिल का दौरा पड़ रहा है। ये लोग घबराने लगते हैं। वो कारकुन से बच्ची की हालत और इसकी अलामात के बारे में पूछते हैं जिससे उन्हें मालूम होता है कि लड़की को दिल का दौरा नहीं पड़ा था बल्कि सिर्फ घबराहट का दौरा पड़ा था जो कुछ वक्त में ठीक हो जाएगा। लेकिन पुरसुकून रहने के बाद लिली अम्मार से बात करती है और उससे पूछती है कि फर्ज करो हुकूमत तुम्हारी तमाम शराइत मान ले तो तुम यहाँ से निकल कर क्या करोगे। तो वो कहता है तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, लेकिन हाँ मेरी एक शर्त और है, मैं ये भी चाहता हूँ कि एक लिमोजीन यहाँ से चली जाए ताकि जब मैं जाऊँ तो बहुत शाहाना महसूस करूँ। इस वक्त भी स्पेशल फोर्स के बहुत से लोग अपने स्नाइपर्स के साथ बाहर खड़े थे। एक स्नाइपर का लेजर उसके जिस्म पर गिरता है और वो बहुत घबरा जाता है। उसका ख्याल है कि पुलिस या स्पेशल फोर्स के लोग उसे मारने जा रहे हैं। तो उसने दोबारा बंदूक एलन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, अब मैं किसी सीनियर से बात करना चाहता हूं, मुझे किसी से बात करने दो। इसका कहना है कि अगर आप मुझे 5 मिनट में किसी सीनियर से बात करने पर मजबूर नहीं करते तो मैं एलन को गोली मार दूं। बाहर हम कुछ फौजियों को देखते हैं जिन्हें दहशतगर्दी की इस कार्रवाई की वजह से छुट्टी के बावजूद हंगामी बुनियादों पर यहां आना पड़ा। इनमें से एक सिपाही इस वक्त बहुत परेशान था क्योंकि इसके यहाँ आने से इसके घर वाले बहुत परेशान थे और इसकी बीवी भी इससे नाराज थी। दूसरा सिपाही यहाँ से समझाता है कि आप उन्हें नाराज ना करें, शुक्र करो कि सिपाही बनने के बाद आपका एक खानदान है, मेरे पास वो भी नहीं है। यहाँ 5 मिनट गुजर चुके थे। लिली किसी सीनियर से राब्ता ना कर सकी तो अम्मार ने पीछे की तरफ गिनना शुरू कर दिया। जैसे ही इसकी उल्टी गिनती खत्म होती है उसने अलाइन को मार डाला। जैसे ही वो नंबर 2 पर पहुंचा, लिली ने उससे पूछा कि वो किस रंग की कार चाहता है। अम्मार भी अपना उल्टी गिनती भूल जाता है और उसे बताना शुरू कर देता है कि मुझे एक गुलाबी लिमोजीन चाहिए। इस तरह ये लोग अम्मार को अपनी बातों में फंसा लेते हैं और अलाइन की जान थोड़ी देर के लिए बच जाती है।
अमर स्पेशल फोर्सेस के साथ मुसलसल राब्ते में था, तो अलाइन उससे कहती है, इतनी देर से तुम उनसे बात कर रहे हो, क्या तुम मुझे पानी नहीं पिला सकते? तुम मुझे रेड बिल पर जो दवाई दे रहे हो उससे मुझे ज्यादा तकलीफ हो रही है। अम्मार ने उसे खामोश रहने को कहा, तो अलाइन को भी गुस्सा आता है और कहती है कि या तो तुम मुझे फौरन मार दो या फिर पानी पिलाओ, वरना मैं बहरहाल मर जाऊंगी। ये सुनकर अम्मार अब पुलिस से पानी मांगता है। यहाँ पानी भी आ चुका था जो दरवाजे की दूसरी तरफ रखा हुआ था। जैसे ही अम्मार पानी लेने के लिए एक तरफ से दरवाजे के करीब आता है, अलाइन उसे चकमा देती है और दरवाजे के दूसरी तरफ से भागकर अपनी जान बचा लेती है। ये देखकर अम्मार को बहुत गुस्सा आता है। जैसे ही वो अलाइन को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा, सिपाही जो सिर्फ अपने खानदान के बारे में बात कर रहा था, गाड़ी को तेजी से चलाता हुआ आया और उसने अम्मार को गाड़ी के नीचे ले लिया, यानी उसे मार डाला। अम्मार आखिरी लम्हात में अपना रिमोट दबाने के काबिल नहीं था, जिसकी वजह से स्टोर बच गया। पुलिस ने सुकून का सांस लिया और अंदर मौजूद बाकी 4 लोगों को भी बचाकर बाहर लाया गया। इंकिशाफ हुआ है कि अम्मार के पास जो बम था वो असली था, और अगर आज ये लोग होशियारी से काम न लेते तो बहुत से लोग जान से हाथ धो सकते थे। लेकिन आखिरकार ये तमाम लोग बच गए। खुसूसी दस्ते एलियन को उसके अपार्टमेंट पर छोड़ देते हैं और बाकी लोग वहां से चले जाते हैं। एलियन सोच रही थी कि उस वक्त उसके साथ जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक डरावना ख्वाब था। वो जेब से एयरबड निकालकर कानों से लगाता है और रोने लगता है। वो बस यही कहने गया था और अपनी जान को खतरे में डाल दिया था। फिल्म के आखिर में हमें पता चलता है कि ये फिल्म एक हकीकी कहानी पर मबनी है और फिल्म यहाँ पर खत्म होती है।